بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ شوقی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز شوقی، حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے یہ گراؤنڈ میں ہوں، اور یہ کوئٹہ بلوچستان سے جو ڈسپنسر کے لواحقین آئے ہوئے ہیں، آئیے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، کوئی موقف بھی سنواتا ہوں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ، آپ بیٹھے ہیں۔ یہ 2-3 دن پہلے بھی ادھر بہت واٹر کینن بھی چلایا گیا، اور اس طرح یہ بوڑھی مائیں آئی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ ادھر آئے ہوئے ہیں، کیا کچھ کہنا چاہیں گے جناب؟ ہم تو یہاں پہ ایک شوق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جی جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری ماں کو جی 80 سال کی، جی جی، یہ ہمارے آپ آگے چلے جائیں، چلے جائیں، چلے جائیں، جاؤ، جی جی یہ ہمارے بزرگ کو 80 سال کی، جی، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے اکلوتا بیٹا بالکل صحیح ہے، وہ 10 اور 15 سال سے غائب ہیں۔ یہ ٹھیک دیکھیں ہے، آپ میرے ساتھ، جی جی یہ خلیل احمد، جی یہ 2019 سے جی نظر آ رہے، یہ شربت، یہ دیکھیں 2012 سے، 2012 تو یہ انسانیت ہے۔ نہیں، صبح لوگ مرتے ہیں، جیتے ہیں، ہاں، رات کو سوتے ہیں، جی، سوگ ہے، مستقل سوگ ہے، عشروں سے سوگ ہے، ماتم ہے ان کے گھروں میں۔ صحیح ہے۔ وہ ماں جی کا 2000 وہ دیکھ، یہ 2014 سے، یہ 2014 سے، اور یہ ہماری بیٹی ہے، اور یہ ان کی یہ عمر دیکھیں مہرگل مری، ہاں یہ دو دردمندوں کا جی، لانگ مارچ ہے، تکلیف کے ماروں کا لانگ مارچ ہے، مظلوموں کا لانگ مارچ ہے، صحیح بات یہ ہے، جبر کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ جبری گمشدگی، یہ ماورائے عدالت قتل عام، ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف ہے، یہ اپنے پیاروں کی بازیابی اور امن کے لیے، ٹھیک ہے، یہ رول آف لا کے لیے، بشری حقوق کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، آئے ہیں ان کے ساتھ، بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، شریک ہیں، ان کی آواز بنیں گے انشاءاللہ، جی جی، یہاں بھی بن رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بنے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ریاست ہوش کے نہ ہوں دے، آگ سے نہ کھیلے، مظلوموں کی آہ سے بچے، تکلیف کے ماروں کی آہ سے بچے، ان مظلوموں کی، ان کے پیاروں کو بازیاب کریں، یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے ان کو بند کریں، ڈیتھ اسکواڈ کو ختم کریں، بلوچ سرزمین کو امن دے، بلوچ عوام کو امن دے، ان کو نہ تڑپائیں، ان کو مزید تکلیفیں نہ دیں، تو یہ مطالبہ ہم حکومت سے کرتے ہیں۔ اور جو تشدد ان کے اوپر کیا ہے، انوسنٹ، بے قصور، غریب نہتے بچے بچیاں، ان کے اوپر واٹر کینن سے رات کے وقت ٹھنڈا، اس دسمبر جنوری میں ٹھنڈا پانی، پھر بدترین قسم کا وائلنس اور تشدد، پھر تانوں کے اندر بند کر کے جس طرح تشدد کیا، ابھی بھی 14 بچے ہمارے لاپتہ ہیں، 14 بچے گرفتار ہیں، 14 بچے غائب کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی عدالت کے حکم کے باوجود اسلام آباد پولیس نے اس لانگ مارچ کے 14 بچوں کو غائب کر دیا ہے، ابھی بھی ان کو بازیاب نہیں کہ ان کو رہائی نہیں دی۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو رہا کریں، ان کو یہ حق دیں کہ وہ بولیں، بلوچستان کو جینے دو، بلوچستان کو بولنے دو، یہ جو جبری گمشدہ افراد کے لواحقین ہیں ان کی فریاد سنو، ان کی آہ سنو، تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ ہے، اور ان کے لیے ہم اظہار یکجہتی کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، ریاست کی 4 اہم ستون ہوتے ہیں، مطلب لوگ، پیپل، ٹیریٹری، اور یہ ریاست کیا پیغام دے رہی ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کر کے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ کیا دکھانا چاہتی ہے ریاست؟ دیکھیں، ریاست کے اوپر جن طبقات کا قبضہ ہے، وہ یہاں پہ انہوں نے ایک عسکری ڈیموکریسی اور ایک عسکری نظام نافذ کر دیا ہے، اور وہ جبر کے ذریعے سے مظلوموں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، وہ جبر کے ذریعے سے اپنی یہ جو ہتھ کنڈے ہیں جبر کی، اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ناکام ہو گئے، آج اس لانگ مارچ کی آواز ہر پاکستانی تک پہنچ گئی ہے، آج ہر پاکستانی ان کے ساتھ ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، جو حکومتی جبر ہے اس کے باوجود پورے پاکستانی اس لانگ مارچ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پہ دکھی ہے، اس پہ ان کے دل زخمی ہیں، ان کے لیے ہمدردی ہے، ان کے مطالبات کے لیے حمایت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ریاستی اداروں اور جبر کی ناکامی ہے۔ اس کے ذریعے سے
जो ये हरकतें कर रहे हैं ये पाकिस्तान के जोग्राफिया के लिए खतरा है। तो नाजरीन ये जी प्रेस क्लब के बाहर ग्राउंड में काफ़ी तादाद में लोग बैठे हैं और ये आप देख सकते हैं एक पिछली रात को तकरीबन इन पे पानी भी मारा गया था और ये देख सकते हैं आज़ादी इन्होंने तो ये है जनाब प्रेस क्लब। ओ ये आप देख सकते हैं जी और आपकी आवाज़ अगर वो दूसरी है, अगर आप गुर्बत से पैदल चलकर यहाँ आ रहे हो तो वेल विद यू। ये पैगाम ख़तरनाक इसलिए है कि मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि इसी तरह का पैगाम हमने बंगालियों को दिया था। उसका अंजाम जो था वो बड़ा ख़तरनाक था, बड़ा ख़राब था। तो एक ये पैगाम दिया है। दूसरा जो पैगाम दिया है वो ये है कि ये तो यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि इनके जो प्यारे लापता हो गए उनको ओवरनाइट बाहर निकाला जाएगा। ये तो इनको तवक्को नहीं थी। इनकी तवक्को तो सिर्फ ये थी कि हम इक़्तिदार के ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। आपने उनको तशद्दुद करके जिस तरह उन पर बेईमाना तशद्दुद किया तो वो आवाज़ न सिर्फ इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँची, मीडिया तक पहुँची, बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से भी पार कर गई। आज आप देख रहे हैं दुनिया भर में अब ये बात है कि पाकिस्तान में वो बलोच जो मावराए अदालत कत्ल और जो लापता अफराद और जो डेथ स्क्वाड्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उनको रियासत में धकेल दिया। तो ये पैगाम दुनिया भर में गया है और इस पैगाम का एक नुकसान रियासत को होगा और वो इस तरह से होगा कि आप देखिए ये जो आपको तो याद नहीं होगा, हमें तो याद है 70 की दिहाई में चिली में एक डिक्टेटर था पिनोशे उसका नाम था। उसने भी लोगों में खौफ और टेरर फैलाने के लिए लोगों को लापता किया और मावराए अदालत कत्ल हुआ और उसने अपने लिए कानून बनाया कि मैं अब कानून में बस अपने आप को इस्तिस्ना दिया। फिर वही पिनोशे स्पेन और लंदन की अदालतों में घसीटा गया। ये है कि जी उन पर भी हमले होते हैं जिसकी वजह से जो है ये बहुत से लोग सौलतकारी का काम करते हैं और उठाए जाते हैं। इस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे और साथ ही कि इस मामले का हल क्या है? अगर वो कहेंगे कि आप कहेंगे CPP निकल जाए, फलां निकल जाए, फलां निकल जाए, जो इंसर्जेंसी के नाम पे बताया जाता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए आम पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, ये सवाल तो इस स्टेट से आपको पूछना चाहिए। स्टेट बनाई इसलिए इसकी जुडिशरीज भी बनी है, इतनी बड़ी स्टेट है, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। इंसर्जेंसी उन्होंने कैसे स्टार्ट की, सवालात अगर आपने पूछने हैं तो उनसे पूछिए और स्टार्ट से पूछिए कि वायलेंस का इस्तेमाल किसने सबसे पहले स्टार्ट किया और जो फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनोसेंट पीपल पर वो किसने पहले स्टार्ट किया। अगर इंसर्जेंसी है, अगर वहाँ पर स्टेट के फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस हमले के जवाब पे निहत्ते शहरियों पर हमला अगर हो और उनको अबडक्ट करें और उनको सालों तक जो है ना सिर्फ उनकी शिनाख्त के नाम पर, बलोच होने के नाम पर उनको जो है ना अगवा किया जाए। ये जस्टिफिकेशन नहीं देने चाहिए। इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। कहीं पर भी दहशतगर्दी हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आयात बलोच को इसलिए मारा गया कि साथ में कोई एम्बुश हुआ है, किसी FC को मारा गया, FC ने गुस्से में आकर आयात बलोच को मारा। दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। क्या आपके कानून और अदालत में जो हथियार आपको दिए गए, क्या स्टेट आपको अकाउंटेबल नहीं करती? क्या उसकी रिपोर्ट्स आपके पास नहीं है? क्या आपने ये ताकत आपको दी गई है, इस ताकत को आप कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करेंगे? देखिए मैं उन हमलों की मजम्मत करती हूँ। अगर उनकी मजम्मत करने से ये मसला हल हो जाता है तो मैं स्टेट को बोलती हूँ कि मैं उनकी मजम्मत करती हूँ, मगर क्या आप इस मजम्मत के साथ इनके प्यारों को रिहा करेंगे? अब ये आपका काम है कि आप आए और इनके प्यारों को रिहा करें। थैंक यू। मारन, क्या जो मौजूदा हुकूमत है किसी डेलीगेशन की आपसे कोई मुलाकात हुई है? दूसरा ये बताइएगा कि आपकी जो डिमांड्स हैं अगर उनके पूरा नहीं किया जाता तो क्या लाएमल होगा? देखिए अभी तक मुझे अफसोस होता है जब से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की है, हम
हर जगह से गुजर रहा है। ये माएँ मुझसे मुसलसल पूछ रही हैं, बार बार आती है, पूछती है हमारे बेटों की बात की किसी ने? कोई बोल रहा है कि हमारे बेटों को रिहा किया जाएगा? किसी ने हमें संजीदा नहीं लिया। हम जहाँ जहाँ से गुजरे, हमें इवन दो डिजिफान की इंतजामिया ने भी हमें रोकने की कोशिश की। क्वेटा में हमारा सिटिंग हुआ, कोई संजीदा तौर पर आया नहीं, हमसे पूछा नहीं किस लिए बैठे हो, क्या सर दर्द है। 80 साल के बूढ़े यहाँ बैठे, बच्चे बैठे 8 माह के, कोई नहीं आया हमारे पास। अगर आए तो उनके पैगामात आए जिनमें इन लोगों को दहशतगर्द करार दिया गया, ये करार दिया गया कि ये एजेंट्स है, ये किसी और काज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या काज है? अगर इन्फोर्स डिसअपेरेंस आपके आइन और कानून के तहत इलीगल है या नहीं है, आपकी डेमोक्रेसी के तहत इलीगल है या नहीं है, हम आपसे ये सवाल करते हैं। अगर ये इलीगल है तो देन हमारा कॉज लीगल है। हम आपसे आपकी जुडिशरी को ही सपोर्ट करने का बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं अपने अदारों को बहाल करो, जो लोग आपने पकड़े हैं उनको लाओ, अपनी अदालतों में पेश करो। इनमें से कोई एक शख्स भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे को लाओ मेरे हाथ में दो। सब आपसे ये कहेंगे कि अपनी अदालतों में लाओ। और ये नहीं है कि अभी आए हैं, इन्होंने मार्च किया है, इनके खिलाफ देखिए, इनको इनके चेहरों को देखिए, पत्थर उठा सकते हैं, ये चल भी नहीं सकते हैं। ये आपसे और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। इनके केसेस जमा हैं आपकी अदालतों में, आपके कमीशनों में। ये वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते थक चुके हैं। ये तो आपसे पुरअमन तौर पर आकर आपसे डिमांड कर रहे हैं, भाई आपसे रहम मांग रहे हैं कि भाई इनके बच्चों को रिहा करो। मैडम ये बताइएगा कि आप यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लवाहिकीन हैं, लापता अफराद उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या समझती हैं, आपकी डिमांड क्या है? कौन आपके पास आए? आर्मी चीफ आए, चीफ जस्टिस आए, या वज़ीर आज़म नवाज? देखिए, हमारे लिए हम स्टेट के पास आए, हमारे लिए आप क्या समझती हैं, आपको इंसाफ किससे मिल सकता है, ये बताएं, उम्मीद क्या है? ये स्टेट के अदारों से आप पूछे, हम रियासत से इंसाफ मांगने आए हैं। जो भी इख्तियार रखता है वो है, इख्तियार जिसके पास भी है हम उससे इख्तियार मांगने आए हैं। अगर वज़ीर आज़म इन लोगों की रिहाई का इख्तियार रखते तो वो आए हमसे बात करें, हम उनसे और कुछ नहीं मांगेंगे। हमारा आईनी मुतालबा ये है। आप बोल रहे हैं 50 है ना, जितने खानदान यहाँ बैठे आप उनके लोगों को रिहा करें, 50 है या 70 है, ठीक है ना, आप उनको रिहा करें। आप उनको रिहा करने का इख्तियार रखते हैं तो आप इनको रिहा करें। और जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई है, जो तुर्बत के कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जो सीटीडी के ऊपर FIR की गई है, उसको एक्सेप्ट करें, सीटीडी को लगाम दें। अगर आप इन डिमांड्स को आप एक्सेप्ट कर दें और इनको मुकम्मल करने की इख्तियार रखते हैं, मैं मुसलसल कह रही हूँ, हम हर किसी से मिलने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे साथ आएगा बात करने के लिए, हम उसका खैर मकदम करते हैं, उससे मिलने के लिए तैयार है। वो पुलिस जिसने हम पर लाठी बरसाए, हम आज भी उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके काज के हवाले से देखिए, जो भी इस काज को सपोर्ट नहीं करता है, मैं, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स है और हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हम जो गाली गलौज की जबान बोलते हैं, हम वो गाली गलौज की जबान में हम उनको जवाब नहीं देंगे। हमारा तरीका अलग है, हम जो है ना एक अलग नजरिए से बंधे हुए लोग हैं। और मैं सरफराज बुक्की को जवाब देना ही नहीं चाहती हूँ, उसके जवाब में पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। अगर वो इन्फोर्स डिसअपेरेंस को इलीगल कहता है, अगर वो कहता है कि ये लोग अकेले हैं और इन लोगों का, ये लोग जो है ना किसी एजेंट के उस पर है, किसी जो है ना तंजीम ने इनको यरगमाल बनाया हुआ है, तो जाएं देखें, सरफराज बुक्की जाकर देखें। पूरा बलूचिस्तान आज सरापा एहतजाज है, पूरा बलूचिस्तान बंद है और हमारी एक कॉल पर फिर से पूरा बलूचिस्तान बंद होगा। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ये काज ऐसा है कि इसको सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान से मिल रही है, सिंध से मिल रही है, पंजाब से मिल रही है। दिस इज अ जेन्युइन काज। आप इसको गाली गलौज से आप हकीकत को छुपा नहीं सकते। आप इस चीज को जो है ना जवाब फराहम नहीं कर सकते। आप जितना जस्टिफाई करेंगे, जितना वायलेंस यूज करेंगे, ये तहरीक है, इतनी ही बढ़ती जाएगी। बलोच स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है पूरे मुल्क से, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? और क्या यहाँ से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें से भी किसी के ऊपर FIR कटी हैं, तो किस चीज़ की कटी हैं और क्या उनको वापस किया गया है? आपके किसी से मुज़ाकरात हुए हैं इस बारे में? देखिए, मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हमसे पूछा जाता है कि रियासत जो है ना मामला कॉल कर रही है, ये हल नहीं है। हम निकले हैं कि हमारे हजारों लोग आपने अगवा किए, आप उनको इंसाफ दें और आप इसके बदले में और लोगों को अगवा कर रहे हैं। ये आपकी संजीदगी है।
जहाँ जहाँ से हम गुजरे हैं वहाँ वहाँ से लोगों को अगवा किया गया। यहाँ इस शहर में वो स्टूडेंट्स जो इस मार्च का वेलकम करने आते थे, जो PhD स्कॉलर्स है, उनके वेयर अबाउट्स अननोन है। हम नहीं जानते वो कहाँ पे है, हम नहीं जानते वो कहाँ पे, और हमें ये भी खदशा है कि कल को उनकी फेक इनकाउंटर की जाएगी, कल को ये रियासत उनको फेक इनकाउंटर करेगा। और जितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया, हमें ये भी खदशा है कि उसके बाद भी उनको अबडक्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी उनकी लाशें फेंकी जा सकती है। तो ये अबडक्शन का मसला, ये बहुत ज्यादा सीरियस मसला है जिसको आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया है। डॉक्टर साहिबा, ये बात जो आप कर रही है, ये आप पहली दफ़ा नहीं कर रही है, इससे पहले भी बहुत लोग ये बात कर चुके हैं, मिसिंग पर्सन्स की बात कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मंजूर अहमद पश्तीन का, जो आजकल वो भी सलाखों के पीछे है। तो उनके साथ आप लोगों का कोई मवासलत है या मतलब इससे पहले भी मैं और भी इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ। तो इनकी कंसिक्वेंसेस का आपको पता है कि क्या कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस हमने सबसे पहले बर्दाश्त किया। कॉन्सिक्वेंसेस को जितना बलूचिस्तान ने झेला है, मैं किसी ने नहीं झेला है। और हम तमाम जो मजलूमों की तहरीकें हैं उनको, उनकी सॉलिडेरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मंजूर पश्तीन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसकी मूवमेंट को पेश किया जा रहा है क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, वो उस जेन्युइन इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है, जो जेन्युइन इश्यूज जो है ना हमारे ऐवानों में हाईलाइट नहीं होते हैं। हमारे ऐवानों में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, सॉरी टू से इक़्तिदार की भूख में जो है ना वो बातें डिस्कशन होती है। जहाँ पे आपको प्रोग्राम डिस्कशन करने चाहिए थे, जहाँ आपको इंसाफ और आज़ाद देना चाहिए था, वहाँ पे जो है ना इक़्तिदार की भूख में सब वो हो जाते हैं। लेकिन ये वो तहरीकें हैं, मंजूर पश्तीन के साथ साथ जितने भी तहरीकें हैं वो मजलूम आवाम की तहरीकें हैं। पश्तूनों की आवाज़ है मंजूर पश्तीन, और हम उसकी हिमायत करते हैं। और अगर रियासत उसको क्रश कर रही है तब उसकी मजम्मत भी करते हैं कि ये गलत है। आप जो है ना उस आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं जो आवाज़ जो है ना पूरे पश्तूनों की आवाज़ है। जी नहीं, हम पुरअमन तरीके से हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है इस केस को कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ना गुमशुदा हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR हुए हैं, और जहाँ जहाँ से हमारी मार्च गुजरी है वहाँ उन लोगों पर FIR किए गए। कोलू में FIR हुए हैं, डेरा गाजी खान में हुए हैं, कोयटा में हुए हैं, वो सारे FIR वापस लिए जाएँ, स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए। हम पहले भी कह चुके थे। जी, तो नाज़रीन आपने सुना देखा क्या हो रहा है। नेक दुआओं दे नाल मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।